Hi guys, welcome back to my channel. I'm Jasmine and I make travel and lifestyle content. And yes, आपको title से पता चल ही गया होगा. This is about the Dubai itinerary. Basically, the expense cut down of the flights, hotel, then visa, taxi, food, attraction point, whatever that I spent in Dubai, I'm going to give all the breakdown for you guys to plan accordingly. So before going ahead, मैं आपको एक चीज पूछना चाहती हूँ. आपने मेरा दुबई सीरीज देखा? नहीं तो किसका वेट कर रहे हो? जाके देख लो. ओके सो मैंने 4 सीरीज बनाया है दुबई का एंड येस इट्स वेरी much fun and I think you're gonna love it, so you should go and watch it if you haven't watched yet, and you'll get all the idea about which place to go, which place not to go, and yes, that will give you a good planning if you're going to Dubai. Okay, so let's start with the flights because flights पहले करने पड़ते हैं. बट हमने फ्लाइट बहुत ही आई थिंक कम टाइम में किया था, विद इन जस्ट अ वीक. इट वॉज वेरी इम्प्रॉम्प्टू प्लान. सो द फ्लाइट्स कॉस्टेड अस अराउंड 25,000. हमने ओमान एयरबेस किया था. यू कैन ऑल्सो बुक इंडिगो एंड एमिरेट्स. दैट विल ऑल्सो कॉस्ट यू अराउंड 25 to 30,000 ओनली. ओके, इंडिगो इज फॉर श्योर गोइंग टू कॉस्ट यू 25,000, बट एमिरेट्स इट टोटली डिपेंड्स. अगर विदाउट लगेज, सिर्फ कैबिन लगेज हो तो आपको अराउंड 25,000 में मिल जाएगा. बट येस, इफ यू वॉन्ट द check-in luggage, it will cost you around 35,000. So to and fro 60,000 में आपका Emirates में हो जाएगा if you want to go ahead and book that. And if you book Oman Airways or Indigo, then it will cost you around 25,000 per person. So which will cost you around 50,000 for 2 people. Okay. And Emirates also 60,000 for 2 people. Okay. And आप check कर लेना before that. But these are the overall rates जो हमेशा होते हैं. Okay, this is all about the flights. Next we come to visa. Okay, so visa के लिए you have this portal of UAE, but I think they take the platform fees very high, which is around 7,000 per person plus the visa, so which will cost you 15,000. So my suggestion for you is pick an agent. I'll give you the details of the agent which I booked through. It was Ryan Travels and it was very smooth. It cost us around 8,200 per person. I'll give you the contact details below so you can connect them over WhatsApp and they will help you very nice. So these are the agents from the UAE itself. So they'll help you on the visa for all the UAE countries if you want to go. And yes, so it cost us 8,200. मेरे को उन्होंने बोला कि 3 दिन लगेगा, but 1 दिन में ही मेरा वीजा आ गया, which was a great deal. तो 8,200 में you'll get the visa in just a day, and it's a good one. It's very smooth. They will just ask you for your passport and your one photograph. Okay, that's it. Okay, that's it. You don't need anything else. You just need your passport and your photograph, and yes, they will give you the visa, and that's a very smooth process. So visa for Dubai is very easy. It's visa, not visa on arrival, it's e-visa. So that's the reason you have to do all this process. Okay, so now next let's go and talk about the stays. Okay, so stays for 5 days costed us around 44,000. and yes, हमने 2 टाइप के Airbnbs किया था. One, we booked the Airbnb in the International Phase City 2, and that was very cornered place. वहाँ से आप Global Village, then Desert Safari, Outlet Village, Mall, ये सब आप cover कर सकते हो. तो you can stay for 2 days over there, and then we stayed in downtown Dubai, which was amazing. It had the view of Burj Khalifa and you couldn't ask anything more. And the steal deal is that we got those Airbnb just at 11,000 rupees per night. And I know it is not just, but yes, if you want the Burj Khalifa view, and there was मैं क्यों बोल रही हूँ यार, आप मेरे जाके व्लॉग देखो, उसमें आपको पूरा पता चलेगा कितना मस्त व्यू था. ओके, सो स्टेज कॉस्टेड एज अराउंड 44,000. अगर आपको और भी कम करना है तो यू कैन स्टे इन बुर्दुबाई और देरा.
तो वहाँ पे भी एयरबीएनबी थोड़े सस्ते हैं, बट येस जो भी मेन आपको दुबई वाइब जो चाहिए, बुर्ज खलीफा एंड ऑल एवरीथिंग, आप डाउनटाउन में रहोगे तो पता चलेगा. सो मेरे व्लॉग्स में उसके लिंक्स हैं, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो मेरे व्लॉग्स में. आई जस्ट लिंक ऑल द प्ले लिस्ट एंड यू कैन जस्ट गो एंड विजिट माई व्लॉग, एंड उसमें मेरे सारे लिंक्स हैं, सारे स्टेज के, एवरीथिंग. Okay, so stay will cost you around 44,000. And next, now let's talk about the taxi. Okay, because transportation inside Dubai आपको कितना कॉस्ट करेगा. Taxis are costly, are expensive. We didn't opt for any metro or any buses. I know we went for a very short time, so we didn't wanted to waste our time in traveling. So we booked cabs. So cab के लिए first thing before going to Dubai, all you have to do is download Careem's app. ओके, मैं उसका लोगो आपको यहाँ पे पिन कर दूंगी. ओके, सो यू कैन जस्ट गो हेड एंड डाउनलोड करीम्स ऐप, एंड इट्स अ वन स्टॉप ओनली, नॉट फॉर टैक्सीज. यू कैन इवन ऑर्डर फूड, यू कैन ऑर्डर वाटर, टिश्यूज, एवरीथिंग. ओके, हमने नेल कटर भी ऑर्डर किया था क्योंकि वहाँ जाके मेरा नाखून टूट गया था, एंड उसके बाद मुझे नेल कटर ऑर्डर करना पड़ा, सो करीम्स ऐप से ही किया था. ओके, सो इट्स मोर लाइक ए इंस्टामार्ट और ब्लिंकिट इन इंडिया. तो दुबई में वैसे करीम्स ऐप चलता है. तो फॉर टैक्सीज you must download Careem's app and opt for हाला टैक्सीज. तो आपको थोड़ा कॉस्ट कम पड़ेगा, एंड अगर आपको अदर लग्जरी टैक्सीज भी रहते हैं तो वो भी आप बुक कर सकते हो, बट हाला टैक्सी इज इकोनॉमिक. बट वन थिंग अबाउट हाला टैक्सी इज दैट वो अराउंड 8:39 के बाद बंद हो जाता है. उसके बाद ओनली यू हैव टू यूज दोज लग्जरी टैक्सीज. वो थोड़ा महंगा ही रहता है, इट्स अराउंड 20 to 30 दिरहम्स ज़्यादा. हाला टैक्सी का जो भी कॉस्ट रहता है वो 20 to 30 दिरहम ज़्यादा होता है, विच इज़ अराउंड 450 रुपीज़ ज़्यादा रहता है. तो आप सोच सकते हो कितना डिफरेंस होता है व्हेन इट कम्स टू हाला टैक्सी एंड लग्जरी टैक्सीज. ओके, सो टैक्सीज में हम लोग का 5 दिन में कॉस्टेड इज अराउंड 10,000 रुपीज़. एंड येस, मैंने एयरपोर्ट पिकअप के लिए आई बुक्ड इट फ्रॉम booking.com. इवन व्हेन आई वेंट टू बाली, मैंने एयरपोर्ट पिकअप के लिए booking.com से ही किया था, एंड इट इज़ वेरी स्मूथ. यू जस्ट हैव टू पे इट ahead, and they will be waiting in the airport for you with your name tag, and then yes, that's very smooth. You just, because आप इतना थक के आप जब जाते हो तो आप वहाँ जाके बुक करने से अच्छा है आप पहले से प्री बुक कर लो. तो booking.com से आप बुक कर सकते हो. यू विल हैव एन ऑप्शन ऑफ टैक्सीज इन booking.com. तो वहाँ जाके आप टैक्सीज जो एयरपोर्ट पिकअप के लिए, जो एयरपोर्ट टू अपना होटल, बिकॉज स्टेज तो आप पहले ही बुक कर चुके होगे, तो स्टे का डिटेल्स आपको बस देना है, और यू विल गिव योर फ्लाइट डिटेल्स. ओके, तो फ्लाइट डिटेल्स होगा तो एग्जैक्टली उस टाइम में वो दे विल बी ट्रैकिंग योर फ्लाइट्स. ओके, एंड दे विल बी वेटिंग फॉर यू अप टिल 2 hours till you come out, because they know there is immigration, there is everything, so it is going to be amazing. Okay, so this experience is amazing. And talking about immigration, as इसके बारे में आया, टैक्स के बारे में ख़त्म हो चुका है, and talking about immigration is very smooth. ओके, आपको इंडिया में भी they'll just check your visa. ओके, बिकॉज वीज़ा तो पहले से हो चुका होगा. they'll just check your visa and they'll just ask why you are going and you'll just get it stamped. वहाँ आप जाके I don't think किसी ने हमें कुछ पूछा. they just checked our visa and this just, it was very smooth process. Okay, it was very smooth process and it just took us half an hour to come out. And yes, that was also about the immigration process. And next we will talk about the attraction points. Let's go. ओके, सो अट्रैक्शन पॉइंट्स आई जस्ट कवर जो हम गए थे, बिकॉज हमारे पास बस 4 दिन था, होल डे एज 4 दिन ही था. तो जो हमने कवर किया था, जिसका मतलब टिकट प्राइस था, मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ. द फर्स्ट डे वी वेंट टू ग्लोबल विलेज. सो ग्लोबल विलेज इज़ वेरी नॉमिनल प्राइस which was around 1,200 for 2 people. Okay, and yes, before you go ahead and book all your attraction points, the first thing that I'll tell you, that download the app which is Get Your Guide. Guys, I'm telling you, this is one of the amazing apps for any trip, I think,
बट दुबई में मैंने जितना फ्लॉलेसली इसको बुक किया था सब कुछ, आप घर बैठ के ही, मतलब इंडिया में ही बैठ के आप सारे अट्रैक्शन पॉइंट्स का बुक कर सकते हो. सो उसमें क्या होगा कि आपको जो भी फॉरेक्स चार्जेस वगैरह जो पड़ेंगे वो नहीं पड़ेंगे. ओके, सो यू कैन जस्ट पे इन इंडियन रुपीज एंड येस दैट्स द बेस्ट डील एंड यू नीड नॉट टू पे एनी फॉरेक्स चार्जेस. सो आप यहीं से बैठ के कर सकते हो. सो ग्लोबल विलेज का जैसे मैंने आपको बता ही दिया विच वॉज अराउंड 1200 रुपीज. एंड नेक्स्ट इज दैट desert safari. So desert safari mein which one we took is that, you know, for sand duning, desert safari, the falcon ke sath photos and yes, it was pick up and drop also. Okay, everything that costed me only around 5,500 for 2 people. Okay, so we booked a slot of 9 o'clock and it was still around 1 o'clock. They will even give you time for quad biking. Okay, मैंने नहीं किया because मैं डर गई थी. आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ मैं जाऊँगी क्वाड बाइकिंग करूँगी, बट येस बिकॉज बहुत ही टाइट था तो आई थॉट कि मैं उतना चला पाऊँगी कि नहीं एंड सो आई कुडंट. मैंने क्वाड बाइकिंग बहुत मन था कि मैं करूं बट मैंने नहीं किया, हम दोनों ने नहीं किया. तो इट वाज अराउंड 4,000 रुपीज़ फॉर 2 people टर्न अप. सो आप वो भी कर सकते हो. दे विल गिव यू स्पेसिफिक टाइम एंड येस इन दिस पैकेज इवन रिफ्रेशमेंट्स आर देयर. रिफ्रेशमेंट्स में दे विल गिव यू टी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स एंड सम डेट्स. ओके, फ्यू स्नैक्स, दैट्स इट. एंड येस अगर आपको यू नो पूरा दिन स्पेंड करना है, लाइक यू कैन गिव योर टाइम फ्रॉम 2 o'clock to evening or night. Okay, then the dinner is also included. So that will cost you around 5,000 rupees per person. And yes, आप वो भी opt कर सकते हो. शाम को there are light shows, then crackers, then yes, belly dancing and dinner buffet and everything is there. So you can opt for that also. So it's up to you which one you will have. So once you move and you know check and get your guide, you will get all these options. Okay, so आपको कौन से packages चाहिए, आपको quad biking के साथ चाहिए या फिर आपको डिनर के साथ चाहिए, आपको लंच के साथ भी चाहिए, तो सारे ऑप्शंस है. इट्स ऑल यू नो क्यूमुलेटेड एंड you can just pick which one you want. Okay, so that's the reason I'm telling you, please download Get Your Guide. It's not sponsored guys, but it's just that I'm helping you guys to get the perfect the perfect idea about what you exactly want to do. So you'll get everything over there. Okay, next we went to was Burj Khalifa. Okay, so Burj Khalifa and Aquarium both costed us around 11,000 rupees. So Burj Khalifa, I think for the 127th and 128th floor, it is around 3,500 and for the Aquarium it was around 2,000. बुर्ज खलीफा जाओ, एक्सपीरियंस के लिए जाओ, दैट्स इट. बट इट्स नॉट वेरी वाओ, इट्स वेरी ओके. आपको मेरे सीरीज में भी आपको पता चल गया होगा दुबई व्लॉग में. अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए. इट्स ओके. ओके, मतलब अगर आपको स्पेंड करना है एक्सपीरियंस के लिए आप जा सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड नो. एंड नेक्स्ट इज इवन द एक्वेरियम. Okay, that is also a no, big no, because अंदर कुछ नहीं है. इट्स जस्ट 500 meters दैट दे विल शो यू एंड बाहर से सब कुछ दिखता है. सो वंस यू इंटर, ऑल द पीपल इन द मॉल वेर जस्ट हैविंग द स्नीक आराम से फ्रॉम आउटसाइड. सो बाहर से भी उतना ही सुंदर दिखता है जितना अंदर है. तो एक्वेरियम का तो आप जाना ही मत, बेकार है, पैसा वेस्ट है और कुछ नहीं है. ओके, सो दिस वॉज अबाउट बुर्ज खलीफा एंड द aquarium. Next, let's talk about the Dubai frame. So as I was talking about Dubai frame के लिए we spent around 2,600 for 2 people and yes, it's a must go guys. क्योंकि आप जब ऊपर जाओगे आपको पूरा व्यू मिलेगा बाहर का and yes, there's a glass floor where you can walk. सब कुछ है व्लॉग में, आप जाके देख सकते हो. आई नो आप भी सोच रहे हो कितना बोल रही है, व्लॉग देख लो, बिकॉज मैं जो बोल रही हूँ ना आप रिलेट कर सकते हो जब आप व्लॉग्स देखो. Okay, so that's why I'm saying you कि जाके आप देखो. So Dubai frame was around costed us 2,600. So these were the overall attraction points that we visited. Okay, Global Village, Burj Khalifa Aquarium, then Desert Safari and Dubai frame. So it costed us around 20 to 25,000 rupees. In addition to that, you can also go to the Future Museum. And the problem with Future Museum is that उसको आपको almost एक वीक पहले बुक करना पड़ता है, क्योंकि I was checking वो पूरा sold out था. Next 10 days के लिए it was sold out, तो I couldn't get the tickets.
tickets. नहीं तो it was also in my itinerary. And one more thing I missed because we had time crunch was the cruise. So you can go to the Dhow cruise or the yacht. Okay, I almost booked, but because of the time constraint हम वो नहीं कर पाए. But yes, it's a traditional cruise of दुबई जो कि दाव क्रूज है, या फिर आपको एक लग्जरी यॉट टाइप का भी क्रूज करना है तो वो भी जा सकते हो. बोथ वेर चीप. ओके, विच वाज अराउंड 2200 इंक्लूडिंग द डिनर फॉर पर पर्सन. ओके, तो आप ये भी कवर कर सकते हो. एंड येस, वन मोर प्लेस विच आई मिस्ड आउट इज पाम जुमेरा, जो कि मुझे जाना था. देयर वाज अ मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट जो हम चाहते थे कि हम जाए, बट टाइम डिडंट परमिट गाइस. बट आप वो भी ऐड कर सकते हो. एंड वंस यू गो इन टू गेट योर गाइड ऐप, यू विल हैव ऑल द ऑप्शंस ऑफ चूजिंग द पैकेजेस ऑफ, अगर आपको पाम जुमेरा, म्यूजियम, दुबई फ्रेम, ये सब बाहर से भी देखना है तो देयर इज अ पैकेज फॉर दैट. देन एवरीथिंग दे हैव क्यूमुलेटेड पैकेजेस, सो इट्स वेरी नाइस. एंड प्राइस इज ऑल्सो गुड. इट इज समथिंग दैट आप वहाँ जाके बुक करो तो उससे अच्छा है कि आप यहाँ से ही बुक कर लो. तो आप दुबई जाने से पहले दो चीज़ आप कर सकते हो, विच इज करीम्स ऐप एंड द एज यू सेड यू गेट योर गाइड. तो गेट योर गाइड से आपको जो जो करना है आप पहले से ही बुक करके जाओ, तो आपको फॉरेक्स चार्जेस नहीं पड़ेंगे. ओके, नेक्स्ट इज फूड एक्सपेंसेस. ओके, सो फूड एक्सपेंसेस आपके पास दो ऑप्शन हैं. आपने एयरबीएनबी वगैरह किया है तो आप एटलीस्ट ब्रेकफास्ट वगैरह आप एयरबीएनबी में ही कर सकते हो. ओके, एंड देन लंच एंड डिनर यू कैन गो आउट बिकॉज एयरबीएनबी में एवरीथिंग वाज अवेलेबल. ओके, अंडा, नूडल्स, एवरीथिंग वाज देयर. और यू कैन ऑर्डर समथिंग फ्रॉम करीम्स ऐप, या फिर आप यहाँ से इंडिया से भी जो पैकेज पोहा, मैगी वगैरह कुछ पैकेट्स आप डाल सकते हो, तो आपका ब्रेकफास्ट विल बी कवर्ड. एंड येस, आप अगर होटल में रह रहे हो तो ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड रहेगा, तो आपका ब्रेकफास्ट वहाँ कवर हो जाएगा. ओके, एंड देन कम्स टू लंच एंड डिनर. ऑफकोर्स आप बाहर घूम रहे होगे, बट पर लंच एंड पर डिनर विल कॉस्ट यू अराउंड 2500 to 3000 फॉर 2 people. ओके, इन दुबई व्हेन यू गो एंड हैव इट इन एनी काइंड ऑफ रेस्टोरेंट्स और फाइन डाइनिंग. ओके, यू विल इट विल नॉट फाइन डाइनिंग, इन प्रॉपर बेसिक रेस्टोरेंट 2500 से 3000. अगर आप स्ट्रीट में खाते हो तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड स्टिल 1500 रुपीज. उतना तो आपको फूड में लगेगा. तो फूड एक्सपेंसेस इज अप टू यू. इफ यू वांट टू ईट इन द street foods, or you want to explore in the restaurants, it's totally upon your choice. So the food expenses for us was around 30,000 rupees, and that is all about the food expenses. अब जाते हैं हमारे next expenses में. Okay, नेक्स्ट एक्सपेंस इज द मिसलेनियस एक्सपेंसेस. सो वो आपके ऊपर है, जैसे आपको शॉपिंग करना है या फिर छोटे मोटे शॉपिंग, स्ट्रीट शॉपिंग, या फिर छोटे मोटे चीज़ खाने पीने होंगे. एंड येस, द वाटर इन दुबई इज़ नॉट चीप. जस्ट फॉर 500 ml इज़ अराउंड 150 रुपीज़ गाइस. येस, और अगर आप यही चीज़ कोई मॉल वॉल से लोगे तो फिर वो अराउंड 200 रुपीज़ भी जाता है. ओके, द वाटर price is very high. And one thing I did was, I ordered a can of 12 bottles of 500 500 ml का 12 bottle हमने लिया, which costed very less for us, which was around, I can say, 400 to 500 rupees when you order from the Careem's app. तो अगर आप Careem's app से कुछ लेते हो या फिर लोकल स्टोर्स में जो ग्रोसरी स्टोर वगैरह होता है वहाँ से ले सकते हो पानी. तो ये सब आपके मिसलेनियस कॉस्ट हो गए खाने पीने के अलावा पानी का. देन छोटा मोटा आप शॉपिंग करोगे एंड ऑल. एंड वन मोर थिंग एज ए शॉपिंग टिप गाइस. ओके, दुबई मॉल इज हाईली एक्सपेंसिव. आपको उधर कोई डिस्काउंट्स नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा. इट्स ऑल फुल प्राइस. तो दुबई मॉल में इट्स, इफ यू हैव दैट बजट यू कैन गो हेड एंड शॉप इट. एंड बट if you want to visit Dubai Outlet Mall, that's the best place. You'll get up to 80 to 90% off. आपको सारे ही brands में, like Michael Kors, then Coach, then Adidas, then Nike, Aldo, Da Milano, सब में आपको मिल जाएगा ऑफर. आप मेरे ब्लॉग्स में भी जाके देख सकते हो, मैंने सब कुछ दिखाया आउटलेट मॉल में. मेरे से जितना हो पाया मैंने उतना दिखाया आपको. सो नेक्स्ट इज द मिसलेनियस कॉस्ट. सो 4 days में, प्रॉपर 4 days में हम लोग का कॉस्ट वॉज अराउंड 2 लाख रुपीज. सो फॉर 2 people ऑफ कोर्स. एंड येस, दिस वॉज ओवरऑल जितना हमने स्पेंड किया एंड ऑल.
बट अगर आप उससे ज़्यादा रहोगे, एंड ऑब्वियसली यू विल प्लान फॉर अदर थिंग्स ऑल्सो, राइट? सो अगर आप सारे अट्रैक्शन पॉइंट करते हो तो 2 जन के लिए इट विल कॉस्ट यू 1 लाख रुपीज़. सो आई विल सजेस्ट यू, इफ यू आर प्लानिंग फॉर 7 to 8 days फुल, आप क्योंकि आप बार बार तो दुबई जा नहीं रहे हो, राइट? तो एक बार अगर जाओगे तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 4 to 5 lakhs रुपीज. एंड वन मोर थिंग इज दैट गोल्ड शॉपिंग. गोल्ड, आप गोल्ड सुक में जाके शॉपिंग कर सकते हो. आई हैव गिवन द डिटेल्स फ्रॉम वेयर टू बाय, एंड यू नो सो द डिफरेंस इज अराउंड 7 to 8 thousand रुपीज ऑन 24K कैरेट गोल्ड. सो वो भी एक है. तो आप गोल्ड भी खरीद सकते हो. दुबई जाओ तो गोल्ड ज़रूर खरीदना, बिकॉज व्हेन यू कंपेयर द प्राइजेस विद इंडिया इट इज़ कंपैरेटिवली लेस. तो अगर आपके बजट में है कि आप गोल्ड खरीद सकते हो तो ज़रूर लेना. हमने लिया और मुझे आई थिंक आई गॉट अ गुड प्रॉफिट ऑफ 18 to 20,000. सो इट इज़ अ वेरी गुड डील. सो आप वो भी ले सकते हो गोल्ड में भी. एंड येस, दैट्स ऑल. मैं आपको एक ओवरऑल चार्ट आपको दिखा दे रही हूँ, सो आपको पूरा पता चल जाएगा हमें कितना 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 लगा. एंड येस, दिस वाज अ वेरी फन ट्रिप. सो इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड माय सीरीज, प्लीज़ गो हैड एंड वॉच. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, एंड डू शेयर विथ योर friends and family members and colleagues, best friends, everyone, whoever wants to go to Dubai. This will be helpful for them to plan a trip by yourself. Of course, travel agents and everything are there, but in case if you want to book this Dubai trip by your own, this is going to be a very informative video for you guys. And if you love this video, please go ahead and subscribe to my channel. And yes, thank you so much for showing me so much of love in the whole Dubai series. And I would love that, you can just go ahead and just keep watching my videos. And thank you so much for listening to me. And I hope I was helpful for you guys. Thank you so much. Bye-bye.